السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی کہانی ایک بیوہ عورت اور ایک جوان پڑوسی لڑکے کی ہے جن کا پیار گہرا ہوتا گیا۔ پنجاب کے گاؤں موٹے کی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا نام ارم آنٹی تھا۔ اس کی عمر ابھی 38 سال سے تھوڑی ہی زیادہ تھی۔ ارم آنٹی کا رنگ اب بھی سرخ تھا۔ بیوگی نے اس کے جسم کو مزید بھرپور بنا دیا تھا۔ وہ سادہ سوٹ پہنتی اور دوپٹہ اس طرح لیتی کہ اس کا پیٹ ہلکا ہلکا نظر آتا رہتا۔ گلے میں ہمیشہ موٹی چین رہتی۔ گاؤں کی عورتیں اس سے جلتی اس لیے تھی کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی، گوری چٹی اور صاف ستھری رہتی تھی، اور اس کے بول چال میں بھی شہری لہجہ تھا۔ وہ کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کرتی۔ 15 سال پہلے اس کا شوہر ایک روڈ حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کا بیٹا کیسر صرف 10 سال کا تھا۔ کیسر اب امریکہ میں سیٹل ہو چکا تھا، نوکری اچھی کرتا تھا اور ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا۔ پہلے ارم آنٹی شہر میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی، مگر 2 سال پہلے اس نے گاؤں میں 4 مرلے کا ایک بنا بنایا مکان خرید لیا تھا۔ سامنے صحن، پیچھے چھوٹی سی گیلری، ساتھ 2 کمرے اور ایک کچن تھا۔ اس کے بالکل ساتھ والے گھر میں مظہر رہتا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک تھا، مگر اس کا دل زیادہ کھیتوں میں لگتا تھا۔ اس کا باپ کئی سال پہلے سعودی عرب چلا گیا تھا اور اس کی ماں گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ مظہر لمبے قد، بھرپور جوان، مضبوط جسم والا، گندمی رنگ اور آنکھیں ایسی کہ ایک بار دیکھ لو تو یاد رہ جائیں۔ گاؤں کے لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ یہ لڑکا ابھی سے بڑے بڑے جوانوں کو مات دے رہا ہے۔ ایک شام کی بات ہے، سردیوں کے دن تھے۔ ارم آنٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چھت پر لگی ڈش ہل گئی۔ آواز چلی گئی اور صرف جھلمل کرتی اسکرین رہ گئی۔ ارم آنٹی نے 2-3 بار ریموٹ دبایا، پھر باہر نکلی۔ اسے چھت پر چڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ مظہر باہر آیا۔ وہ صرف بنیان اور پاجامہ پہنے کھڑا تھا۔ اس کا جسم چمک رہا تھا۔ ارم آنٹی نے اسے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا۔ ارم آنٹی کا سانس ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ ارم آنٹی نے کہا، بیٹا، ہمارے ٹی وی کی آواز چلی گئی ہے، لگتا ہے چھت پر ڈش ہل گئی ہے، تم دیکھ لو گے؟ مظہر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، آنٹی جی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ارم آنٹی نے اسے اندر آنے دیا۔ مظہر سیڑھی لگا کر چھت پر چڑھ گیا۔ ارم آنٹی نیچے کھڑی دیکھتی رہی۔ ارم آنٹی کی نظر مظہر کے چوڑے کندھوں پر ٹھہر گئی۔ بنیان کے نیچے اس کی کمر پتلی تھی۔ پھر ارم آنٹی نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ 10 منٹوں میں کام ہو گیا۔ مظہر نیچے اترا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ ارم آنٹی نے رومال نکالا اور بغیر سوچے اس کا ماتھا پونچھ دیا۔ مظہر یکدم کانپ سا گیا۔ مظہر کی آنکھیں ارم آنٹی کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ 2 لمحے کوئی کچھ نہ بولا۔ ارم آنٹی نے خود کو سنبھالا اور بولی، بہت بہت شکریہ بیٹا، چائے پیو گے تو بناتی ہوں۔ مظہر نے کہا، آنٹی جی چائے تو ضرور پیوں گا، سنا ہے آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں۔ کچن میں ارم آنٹی چائے بنا رہی تھی۔ مظہر دروازے پر کھڑا ارم آنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم آنٹی کا دوپٹہ بار بار سرک رہا تھا۔ مظہر کی نظریں وہیں ٹھہر جاتی، پھر وہ شرما جاتا۔ ارم آنٹی کو معلوم تھا کہ مظہر دیکھ رہا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر دوپٹہ نہیں سنبھالا۔ چائے پیتے ہوئے دونوں باتیں کرنے لگے۔ ارم آنٹی نے پوچھا، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ مظہر نے کہا، بس ٹھیک ٹھاک آنٹی جی، اب تو دل زیادہ کھیتوں میں لگتا ہے۔ ارم آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ابھی تو تمہاری عمر ہے پڑھنے لکھنے کی، کھیت تو بعد میں بھی سنبھالے جا سکتے ہیں۔ مظہر نے چائے کا کپ رکھا اور بولا، آنٹی جی آپ اکیلی رہتی ہیں نا، کبھی کوئی کام ہو تو بلا جھجک بلا لیا کریں، میں تو ساتھ ہی ہوں۔ ارم آنٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اب تمہیں ہی میرا سہارا بننا پڑے گا۔ اس دن کے بعد باتیں بڑھنے لگیں۔ صبح سویرے مظہر صحن سے صفائی کر دیتا۔ کبھی ارم آنٹی کے لیے بازار سے سودا سلف لے آتا۔ ارم آنٹی اس کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ بنا دیتی۔ گاؤں کے لوگ دیکھتے، مسکراتے اور کچھ نہ کچھ اچھا برا کہتے بھی رہتے، مگر ارم آنٹی کو ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ارم آنٹی کپڑے دھو رہی تھی۔ صحن میں ٹب رکھا تھا۔ مظہر آیا اور بولا، آنٹی جی لگتا ہے پانی کم ہو گیا ہے، میں نلکے سے بھر لاتا ہوں۔ ارم آنٹی نے کہا، کوئی بات نہیں، رہنے دو، میں منگوا لوں گی۔
मजर ने कहा, नहीं आंटी जी, आप आराम करें। वो टब लेकर नलके पर चला गया। जब मजर वापस आया तो पानी की छलक छलक कर गिरने की वजह से मजर की बनियान पूरी तरह भीग चुकी थी और जिस्म के साथ चिपक गई थी। इरम आंटी ने देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मजर ने टब रखा और बोला, लो आंटी जी पानी। इरम आंटी ने कहा, तुम भी पूरी तरह भीग गए हो, जाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मजर ने शर्माते हुए कहा, आंटी जी आपकी खिदमत में ही तो भीगा हूँ। इरम आंटी हंस पड़ी और बोली, शुक्रिया। इरम आंटी अंदर गई और एक पुराना कुर्ता निकाल कर बोली, ये लो, मेरे बेटे का है, तुम्हें पूरा आ जाएगा। मजर कमरे में कपड़े बदलने लगा। इरम आंटी बाहर खड़ी रही। उसका दिल कुछ कुछ कह रहा था। जब मजर बाहर आया तो कुर्ता उसके जिस्म पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई मर्द पहली बार उसके घर में आया हो। इरम आंटी ने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता रातें भी बातों में गुजरने लगी। इरम आंटी छत पर कपड़े सुखाने जाती तो मजर भी अपनी छत पर आ जाता। दोनों दीवार के सहारे खड़े होकर बातें करते, कभी चांद की तरफ देखते, कभी सितारों की तरफ। इरम आंटी को लगता कि 15 साल बाद उसकी जिंदगी में कोई अपना वापस आ गया है। एक रात बहुत ठंड थी। इरम आंटी छत पर थी, मजहर भी आ गया। दोनों कंबल ओढ़कर दीवार के साथ लगकर बैठ गए। इरम आंटी ने कहा, मजहर तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मजहर ने कहा, आंटी जी आपके पास बैठा हूँ तो ठंड कहाँ लगेगी। इरम आंटी ने उसकी तरफ देखा। मजहर की आंखें चमक रही थी। इरम आंटी ने आहिस्ता से अपना कंबल उसकी तरफ सरकाया। अब एक ही कंबल में दोनों थे। उनके कंधे आपस में लग रहे थे। इरम आंटी की सांसें तेज तेज चलने लगी। मजहर ने भी कुछ नहीं कहा, बस खामोश बैठा रहा। उस रात इरम आंटी सो न सकी। 15 साल बाद कोई मर्द उसके इतने करीब था, मगर उसने खुद को बहुत समझाया, नहीं इरम, ये गलत है, ये लड़का है, तुम्हारे बेटे के बराबर है। अगले दिन सुबह मजहर फिर आया। इरम आंटी ने उसे देखते ही नजरें झुका ली। मजहर ने कहा, आंटी जी रात को नींद आई कि नहीं? इरम आंटी ने कहा, हाँ बेटा, बहुत अच्छी नींद आई, मगर उसकी आवाज में झिझक थी। मजहर समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी अगर कभी रात को डर लगे तो मुझे आवाज दे दिया करें, मैं फौरन आ जाऊंगा। इरम आंटी ने कहा, अब डर किस बात का है बेटा, तुम तो साथ ही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव में बातें होने लगी। कोई कहता वो शहर वाली बेवा अब मजहर को फंसा रही है, कोई कहता अरे मजहर भी कम नहीं, रोज उसके घर जाता है। इरम आंटी को सब बातों का पता था जो लोग कर रहे थे, मगर वो खामोश रहती। मजहर को भी पता था, मगर वो कहता, आंटी जी लोगों की बातों का क्या है, हम तो साफ हैं। एक दिन इरम आंटी को खत आया। कैसर ने लिखा था कि वो शादी करने वाला है। इरम आंटी खुश भी हुई और उदास भी। उसे लगा अब वाकई वो अकेली रह जाएगी। उसने मजहर को खत दिखाया। मजहर ने खत पढ़ा और खामोश हो गया। फिर बोला, आंटी जी अगर कैसर भाई खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। इरम आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पर बेटा अब तो मैं वाकई अकेली हो जाऊंगी। मजहर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, आंटी जी जब तक मैं जिंदा हूँ आप अकेली नहीं हैं। उस लम्हे इरम आंटी का दिल भर आया। उसने मजहर के हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, सच कह रही हो ना? मजहर ने कहा, पूरा सच आंटी जी। फिर दोनों खामोश हो गए। बाहर बेरी के दरख्त पर कौवे बोल रहे थे। इरम आंटी का हाथ अभी भी मजहर के हाथ में था। उस दिन के बाद इरम आंटी के घर का दरवाजा मजहर के लिए 24 घंटे खुला रहने लगा। मजहर भी अब बगैर पूछे आ जाता, चाय पीता, कभी रोटी खा लेता, कभी इरम आंटी के साथ सहन में बैठकर पुराने गाने सुनता। इरम आंटी को अब अपने कमरे में अकेले सोने से डर नहीं लगता था। उसे मालूम था कि दीवार के पार कोई अपना है। मजहर की माँ को भी सब पता था। पहले तो वो नाराज हुई, शोर मचाया कि ये शहर वाली तुम्हारे दिमाग पर सवार हो गई है। मगर मजहर ने एक ही बात कही, अम्मी वो मेरी माँ जैसी है। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ कि मैं उनके साथ कभी गलत नहीं करूँगा। माँ खामोश हो गई। उसे भी पता था कि बेटा झूठ नहीं बोलता। फिर गर्मियों का मौसम आने लगा। दिन बड़े हो गए। एक दोपहर इरम आंटी सहन में चारपाई बिछाकर लेटी थी। पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसका दुपट्टा सरका हुआ था। दरवाजा खुला था। मजहर बगैर आवाज किए अंदर आया और उसे इस तरह देखकर वो यकदम ठठक गया। मजहर का सांस रुक गया। इरम आंटी ने आंखें खोली और उसे देखकर घबरा गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और बोली, अरे मजहर तुम कब आए?
आवाज भी नहीं दी। मजर ने नजरें नीचे कर ली और बोला, सॉरी आंटी जी, दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा अच्छा मैं बाद में आ जाऊंगा। इरम आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कमलिया, अब क्या शर्मा रहा है? तुम तो रोज आते हो, बैठ जाओ। मजर चारपाई के किनारे बैठ गया। इरम आंटी ने दुपट्टा ठीक किया, मगर जानबूझकर थोड़ा पीछे रखा। उसकी गहरी गर्दन नजर आ रही थी। मजर की नजर बार बार वहीं जा रही थी। इरम आंटी ने देख लिया। उसने आहिस्ता से कहा, क्या देख रहा है बेटा? मजर लाल टमाटर हो गया और बोला, कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही। इरम आंटी ने हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं ना? मजर ने सर झुकाकर कहा, हाँ आंटी जी, बिल्कुल माँ जैसी। मगर उसकी आवाज में कुछ और था। इरम आंटी ने भी महसूस किया। उसने बात बदल दी और बोली, चल तुम्हें ठंडा शरबत पिला देती हूँ। फिर किचन में दोनों मिलकर शरबत बनाने लगे। इरम आंटी ने ग्लास में बर्फ डाली। मजर पीछे खड़ा था। जैसे ही इरम आंटी पीछे मुड़ी, वो मजर से टकरा गई। उसका जिस्म मजर के सीने से लग गया। एक लम्हे के लिए दोनों रुक गए। फिर अचानक इरम आंटी ने खुद को पीछे खींचा और बोली, बेटा ये ठीक नहीं। मजर ने सर झुकाकर कहा, माफ करना आंटी जी, मैं चला जाता हूँ। इरम आंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं मजर, तुम कहीं नहीं जाओगे, बस हमें दोनों को संभलना होगा। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मजर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आंटी जी, मैं भी आपको कभी नहीं खोना चाहता। उस दिन के बाद दोनों ने एक अनकही लकीर खींच दी। कुर्बत बढ़ी, मगर हाथ बढ़ाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मजर अब इरम आंटी के सारे काम खुद करने लगा। खेत की देखभाल, कागजी काम, बैंक के काम, यहाँ तक कि इरम आंटी की दवाइयाँ भी वही ले आता। इरम आंटी उसे प्यार से मेरा राजा कहती। मजर हंस देता। एक दिन इरम आंटी को कैसर का फोन आया। कैसर ने बताया कि उसकी बीवी उम्मीद से है। इरम आंटी बहुत खुश हुई। उसने मजर को बताया। मजर ने कहा, आंटी जी, अब तो आपको पोता होने वाला है, आपको अमेरिका जाना चाहिए। इरम आंटी खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, मैं वहां जाकर क्या करूंगी मजर? मेरा घर तो अब यही है और तुम यहाँ हो ना। मजर ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इरम आंटी को अपनी सेहत की फिक्र होने लगी। रात को टांगों में दर्द होने लगा, कभी सीने में घबराहट होती। डॉक्टर ने कहा कि बीपी की दवाई शुरू कर दो, अकेले रहोगे तो तकलीफ बढ़ेगी। इरम आंटी ने मजर को बताया। मजर ने कहा, आंटी जी, अब आप अकेली नहीं रहेंगी, मैं आपका सारा हिसाब किताब देख लूंगा। एक दिन इरम आंटी ने मजर को अपने पास बुलाया और बोली, सुन मजर, मैंने वकील से बात की है, मेरी सारी जमीन, मकान, बैंक का पैसा, सब कुछ तुम्हारे नाम कर रही हूँ। मजर हैरान रह गया और बोला, आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये सब आपका है? इरम आंटी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं बेटा, मेरे पास कैसर है, मगर वो दूर है। मेरी असल जरूरत तुम हो, तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। मुझे एक बेटे की जरूरत थी, वो बेटा तुम हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद ये सब तुम्हारा हो। मजर की आंखें भर आईं। उसने इरम आंटी के पांव छुए और बोला, आंटी जी नहीं, अब से आप मेरी माँ हैं, मैं आपको माँ जी कहूँगा। इरम आंटी ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, आज से तुम मेरा बेटा हो। उस दिन के बाद गांव में बात फैल गई कि इरम आंटी ने मजर को गोद ले लिया है। कागजात तैयार हुए। इरम आंटी ने मजर का नाम अपने तमाम कागजात में लिखवा दिया। मजर अब इरम आंटी को माँ जी कहने लगा। इरम आंटी की आंखों में सुकून था। मजर की माँ भी अब बहुत खुश थी। वो खुद इरम आंटी के घर आने लगी। दोनों औरतें इकट्ठी बैठकर बातें करती। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल उर्दू बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।